आज की इस वीडियो में हम बीएड के फिजिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं इसको पढ़ने वाली हूँ, अपने भी पढ़ूंगी, आप लोगों को भी पढ़ा दूंगी। तो जैसे कि ये मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस है, तो इसको पढ़ते हैं। टीचिंग मेथड: द चाइल्ड हैज सर्टेन peculiarities at every stage. In this modern age, the psychological viewpoint tells us that the study of any subject cannot be successful and complete unless it is based on the age, characteristics and need of the child. Thus, in the field of science, teaching methods play an important role along with its content. These teaching methods are determined by the teacher, keeping in mind the capability of students and the curriculum. Thus, with the help of these methods, the teacher imparts understanding of the subject matter along with the knowledge of curriculum. The teaching method tells the teacher how he or she teach his or her student. यानी टीचिंग मेथड टीचर लोगों को यह बताता है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं. This is true that in the absence of correct direction or path, a person cannot reach its destination. In the same way, in the absence of proper method, the student cannot be given correct knowledge. यानी कि जिस तरह अगर हम लोगों को सही रास्ता पता नहीं है और हम लोग सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे, सेम वैसे ही अगर हम लोग का टीचर्स को प्रॉपर टीचिंग मेथड नहीं पता तो वो बच्चे को क्या नॉलेज देंगे. तो इसीलिए यहाँ पर कुछ मेथड्स दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं. कुछ ये लाइन भी पढ़ लेते हैं. द टीचर ऑफ फिजिकल साइंस शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड. The assistance of method is achieving the objectives of teaching of physical science. The knowledge of physical science teacher pertaining to that particular method, the availability of apparatus and material in the school required in that particular method, the experimental nature of method, the class, age and capability of students, opportunities for catering the needs of individual differences. The methods used for teaching of physical science are given below. इन मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. पहला मेथड है लेक्चर मेथड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, रिव्यू मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड मीन्स डिस्कवरी मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड, इंडिपेंडेंट स्टडी मेथड, लेबोरेटरी मेथड. सबसे पहला लेक्चर मेथड. लेक्चर मीन्स टीचिंग अ लेसन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और टॉक. द टीचर delivers a lecture on a particular topic and the students keep listening in an ideal manner. This method is useful at higher level classes. In this method, the information can given regarding the content of the topic, but the students cannot be motivated to attain knowledge themselves, and they cannot be made capable to make use of acquired knowledge. By the lecture method, it is difficult to find out the extent to which the student has been able to learn. मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लेक्चर मेथड होता है ये एक फॉर्म है स्पीच में, यानी कि टीचर जो है मुंह से बोलकर बच्चों को पढ़ाएंगे, उसी को लेक्चर मेथड कहते हैं. ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सही नहीं है, ये बड़े क्लास के लिए सही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही कुछ समझते नहीं है. अगर बातों से समझाएंगे तो कहाँ उनका ध्यान आएगा. लेक्चर मेथड ऐसे भी लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस मेथड में अगर हम बच्चों को बताएंगे तो उसका ध्यान हमेशा इधर उधर भटक जाएगा, सुनने पे इतना ध्यान नहीं रहेगा. कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं. यूजफुल फॉर हायर क्लासेज, इट इज़ ईजी, ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव फॉर टीचर. मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड. मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन लिसन एंड प्रिपेयर नोट्स. The argumentative flow of the subject is retained. This method gives a sense of fulfillment as regard the progress of the subject, both the teacher and the taught. The flow of thought is maintained and the teacher tells about many new things. This is a convenient method for the teacher. The teacher is always alert. A large number of students are taught in same class, same time. If the teacher makes the lecture interesting, the students attracted towards it and interested
in the topic is delivered। मतलब अब तक यहाँ पर क्या क्या बोला गया कि ये हायर क्लासेस के लिए यूज़फुल है, ये पूरा ईजी है। टीचर लोगों को यही तरीका बहुत पसंद आता है क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, बस बोल देंगे, बच्चे समझे या ना समझे वो बोल कर और निकल जाएंगे, ऐसा है। मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन, यानी कि एक ही कुछ ही देर में हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यानी एक बार में बोल देंगे जितना सारा इन्फॉर्मेशन चल जाएगा बच्चे के दिमाग में। मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन लिसन एंड प्रिपेयर नोट्स, यानी कि जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग सुनेंगे टीचर्स के लेक्चर को तो वो नोट्स बनाएंगे, एक बार में जितना लोग सुन पाएंगे वो बनाएंगे। द आर्ग्यूमेंटल फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट इज रिटेन, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ते हैं। द मैथड, दिस मैथड गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एज रिगार्ड, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये द फ्लो ऑफ थॉट इज मेंटेन एंड द टीचर टेल्स अबाउट मैनी न्यू थिंग्स। इट इज़ कन्वीनियंट मेथड फॉर द टीचर्स, द टीचर इज ऑलवेज अलर्ट। मतलब कि ये टीचर्स के लिए अच्छा है लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या बोलता है? बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड द स्टूडेंट हिमसेल्फ makes observation and acquires permanent and true knowledge. He makes observation of nature in gardens, homes, in the groups, in the lab, at schools, and acquire first-hand knowledge. The teacher only encourages to make observations and students act accordingly. मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये भी एक बहुत अच्छा सा मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में बस हम लोगों को बच्चों को यह सिखाना होता है कि तुम आसपास को ऑब्जर्व करो, अपने नेचर, गार्डन में, होम में, ग्रुप्स में, मतलब तुम कहीं भी जाओ तो बस वहाँ पर जो भी दिखे उसको ऑब्जर्व करो और उसके ही अनुसार तुमको हम कुछ सिखाएंगे, यानी कि कुछ भी सिखाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। दिस मेथड helps students to see, think, give logic and to convey their thoughts independently। यानी कि इस मेथड में जो बच्चे हैं ना वो देख कर सीखते हैं और अपने सोचते हैं और अपने दिमाग लगाते हैं और फिर उनको जो भी दिमाग में आता है वो फिर टीचर को बताते हैं। The students are able to learn similarities and dissimilarities of objects clearly and easily। तो वे लोग को अच्छे समझ में आएगा अंतर जो भी वो लोग समझ पा रहे हैं आसपास के वातावरण से। द वर्क ऑफ द टीचर इज़ मेड ईजी, इससे टीचर का भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि टीचर को तो बच्चों को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे तो अपने ही समझ रहे हैं। द एक्वायर्ड नॉलेज इन द फॉर्म नेचुरल सोर्सेज एंड दस परमानेंट, तो इस समय जो बच्चे को दिमाग में ज्ञान आएगा ना वो परमानेंट रहेगा क्योंकि वे लोग आसपास के वातावरण से सीखे हैं। डेवलप्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट, यानी कि इस मेथड से बच्चे के दिमाग में इंटरेस्ट आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या होता है? फिजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, दस दिस शुड बी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। फॉर टीचिंग दिस सब्जेक्ट द लेबोरेटरीज आर अ मस्ट। द लेबोरेटरी मेक्स टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस मोर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। इन द लेबोरेटरीज द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट फैक्ट्स एंड लॉज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस एंड चेक देयर ट्रूथफुलनेस एंड लर्न टू मेक प्रैक्टिकल यूज ऑफ देम। In this method, the student becomes very active and learns himself. The student finds the answer to curriculum-related problem under the guidance of the teacher. He himself notes down the figure of his observation, and on the basis of calculation, he draws conclusions. मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इस मेथड में टीचर अपने स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं और वो भी फिजिकल साइंस। और अगर फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझना इसका मतलब है कि लेबोरेटरी होना ही चाहिए। लेबोरेटरी रहेगा तभी तो हम बच्चों लोग को वहाँ पर लैब में ले जाकर सिखाएंगे और इसमें बच्चे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, उन लोग और मज़ा, उन लोग को बहुत मन करता है कि अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें और सीखें। इसका खासियत क्या क्या है पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन लर्न बाई डूइंग, देयर इंटरेस्ट इज डेवलप्ड एंड द नॉलेज एक्वायर्ड इज ऑफ परमानेंट नेचर। मतलब इस समय बच्चे लोग करके सीख रहे हैं इसलिए उन लोगों का इंटरेस्ट भी जागेगा और उन लोगों को जो भी दिमाग में आएगा वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। दिस मेथड रिमूव्स द डिमेरिट्स ऑफ कलेक्टिव टीचिंग, यानी कि ये जो साथ में पढ़ाते थे ना सारे बच्चों, टीचर एक बार लेक्चर दे देता था और सब बच्चा ध्यान से सुन लेता था, वो चीज़ नहीं है। अब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। दिस मेथड रिमूव्स द, ये तो पढ़ लिए, हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि इस मेथड से बच्चों को सेल्फ स्टडी करने में मदद मिलेगा।
The knowledge acquired by this method is more meaningful. The students learn the application of principle of physical sciences in different situations. Thus, they fully understand the principle and concept of physical science. Students learn the use of apparatus fully and correctly. The students enjoy as they remain active. The student make use their eyes, ear, nose and hand, and thus all these senses are developed. This is a natural method of exploration. The children is, in order to acquire knowledge, perform the practicals with great joy and enthusiasm. This method helps in increasing the self-confidence of the students, and they find themselves more capable and competent. अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरी स्टोरेज भर रहा है। ओके, बाय बाय।